Kuldip Dhiman from India. For the past 20 years or so, I have been writing about people who claim to have lived a past life. Today, we shall meet Savita Sharma, who was born in Dehradun, India on 24th March 1937. Right from the age of 2, she started claiming that she had earlier lived in Calcutta with her brother and sister-in-law, who used to treat her as a slave. Let's hear her story directly from her. I'm Savita Sharma, staying in Bangalore since 1957. I was born in Dehradun on 24th March 1937, and my grandfather was a doctor who took part in the First World War, and he settled down back at Dehradun. But my Nanaji, maternal grandfather, had only one daughter married. I had 4 grandmothers, but only one daughter was born. So my maternal grandfather wanted to keep my elder sister and me with himself. He said, because once my mummy left the house, went to stay with my daddy, Papa said, no, these 2 girls, my elder sister Ranu and me, have to stay with Papa. We used to call Nana and Nani as Papa and Mama. And we were very pampered children. Till school I was not very serious about my studies, but once I joined Lady Irwin College, the atmosphere was so different, with the Parsis teachers and South Indian teachers. Where? In Dehradun? New Delhi. New Delhi. And Mrs. B. Tarabai was the directress and all that. So, my whole sort of a personality changed, and I became very bookish, especially in physics, where I was very weak in school. I was the top student in my Mrs. Bhargavi Menon's class, physics lecturer. First front benchers. I still never missed my physics class, and we had a lot of subjects. I was good, and but about my childhood I'll tell you. Yes. Because at what age? I'll get back to that point. How I started remembering my previous birth. See, we are basically from Nahan, Himachal. Nahan, okay. Ambale ke upar. I know. So, my grandmother and my grandfather, we were so attached, both the girls, to Nana Nani, that उस ज़माने में मेरे डैडी कहाँ काम करते थे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ग्वालियर में काम करते थे. So Mama, it was very difficult for my grandmother to look after both the little girls. Both wanted her attention. तो उन्होंने कहा भैया एक लड़की को तो भेज दो. ये रानू तो बहुत बुरी तरह उलझी हुई है, पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी, तो एक को तो निकालो घर से. तो अब मेरे को कहा कि इसको ग्वालियर ले जाओ. So my real parents, biological parents, they came from Gwalior to Nahan to take me back away. फिर मैं गई. I was a very small girl, but extremely fussy and सिर चढ़ी जैसे कहते वो थी. तो उसके बाद मैं ग्वालियर गई. मुझे अभी तक याद है अच्छी तरह से मम्मी का गुसल खाना. एक दिन मम्मी मेरे को नहला रही थी गुसल खाने में, तो मैं नहीं नहा रही थी. I was hardly 3 years old. तो मम्मी ने कहा देख नाहन का गुसल खाना तो गंदा है, बदबू आती है, ये है सड़ा हुआ है. तो मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा गुसल खाना नहीं है, मेरा गुसल खाना कलकत्ते में है.
तो मम्मी एकदम डर गई और कहने लगी, कलकत्ते, हमारे ज़माने में आई एम 80, किसी को जोग्राफिया में ये हिमाचल के बच्चे वो भी we were not taught about these. We had never heard about Calcutta and other places, such big names. तो कहने लगे कि कलकत्ते, मम्मी भी कभी नहीं गई थी कलकत्ते, हम हिमाचल के लोग, आप दिल्ली तक आ गए तो बड़ी बात हो गई। तो कहने लगे और क्या है तेरे पास? मैंने कहा कि मेरा 3 तल्ला बाड़ी था, वहाँ है, मेरी 4 बहनें हैं जो लाहौर में पढ़ती हैं। तो मम्मी और भी डर गई कि इसको ये वर्ड्स किसने सिखाए, लाहौर, कलकत्ता, हमारे घर में तो ऐसी बातचीत भी नहीं होती थी, है। तो उन्होंने कहा कि और क्या? कहने लगे कि मैंने कहा कि मेरी 4 बहनें तो चली गई थी पढ़ने लाहौर, और मैं रह गई थी कलकत्ते। तो मेरा भाई और भाभी मेरे से बहुत काम लेते थे, बहुत काम करवाते थे, झाड़ू पोछा। तो मैं आई वॉज सट ऑफ अ लेफ्ट ओवर ननन। तो अब मेरी भाई भाभी के तो कोई बच्चा नहीं थे, औलाद नहीं थी, तो मेरे से ही काम लेते थे और नौकर भी नहीं रखा हुआ था घर में। तो और पीछे हमारे घर के एक तालाब जोहड़ सा था, छोटा सा तालाब, उसमें मैं मछलियाँ भी निकालती थी, पकड़ती थी और वहीं साफ करती थी बाहर बैठ के पेड़ के नीचे, और बर्तन भी वहीं मांजती थी, कपड़े भी वहीं धोती थी। घर में पानी नहीं था। और जब मैं बर्तन उठा के लाती थी ना, छोटा बच्चा 7-8 साल का लाती थी, फिर मेरी भाभी जो अच्छा पानी था रसोई का, उसमें पानी डाल के धो के एक दफ़ा रिंस करके फिर शेल्फ में रखती थी बर्तन। तो एक दिन क्या हुआ, एक बर्तन में चिकनाहट रह गई, कड़वा तेल शायद मैं ठीक से नहीं साफ कर सकी। तो बस मेरी भाभी को बड़ा गुस्सा आया और लोहे का चिमटा, मेरे को याद है अच्छी तरह से, 2-3 चिमटे सिर में मारे और मैं उड़कर आ गई पापा के पास। मुझे दर्द नहीं याद कि मेरे सिर में दर्द हुआ होगा, ये कुछ याद नहीं है, मगर ये कहती थी कि उड़कर आ गई मैं पापा के पास। और फिर ये बात आई गई हो गई, उन्होंने 1-2 जनों को, रिश्तेदारों को बताया कि सविता ये सब बता रही है। मेरा पेट नेम है पाथो। मैं बहुत मोटी थी, गोबर की पाथी की तरह, जहाँ बैठ जाती थी वहीं बैठी रहती थी। तो उन्होंने कहा कि कई बच्चों को याद रहता है, अकाल मृत्यु होती है जिनकी, इनको याद रहता है। बड़ी हो गई, फिर 57 में मेरी शादी भी हो गई और मैं बेंगलोर आ गई, वसंत नगर में हम लोग रहने लगे। उसके बाद 1960 की बात है, मेरे हस्बैंड को ऑफिस का काम था, तो कहने लगे तुझे मम्मी डैडी के घर जाना है। 57 के बाद देखो, 1960 में मैं पहली दफ़ा पियर जा रही थी अपने पेके, वो भी कलकत्ते, मम्मी डैडी कलकत्ते। ये जन्म का डैडी भी he was working in Calcutta only. What a coincidence. And वहाँ पे तूने जाना है? मैंने कहा हाँ चलूँगी। तो प्रीति मेरी बड़ी लड़की जो डॉक्टर है, वो थी शायद 15 महीने की या 16 महीने, छोटी लड़की थी। तो हम लोग तीनों तैयार हो गए चलने के लिए और हम गए मद्रास, एरोप्लेन डकोटा होता था उस ज़माने, और कलकत्ते पहुँचे। तो शादी से पहले 57 तक तो 58 तक तो मम्मी डैडी मनोहर पुकर में रहते थे।
छोटे से घर में, किराए के घर में रहते थे, 4 कमरे थे और वहीं पे, मगर बाद में डैडी की प्रमोशन हो गई, ही बिकेम अ चीफ कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस ऑफ इंडिया। तो बहुत बड़ा बंगला मिला उनको, विद अ कंपाउंड, I mean with a big lawn, front lawn, backyard and all that. It was a sheer luxury to have a compound in Calcutta. Congested होते हैं ना कलकत्ता के घर, तो बहुत अच्छा था। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तूने मम्मी को कह दिया था कि हम आ रहे हैं, वो तैयार होंगे मैं रिसीव करने। मैंने कहा हाँ, बहुत चिट्ठियाँ भी दी मगर कोई जवाब नहीं। एक रफ्तार भी दी थी तो उसका भी जवाब नहीं आया। 60 की बात है, 1960। तो कहने लगे कि अच्छा चलो। जब वहाँ हम पहुँचे कलकत्ते तो पता चला हवाई जहाज से चलते उस ज़माने में 250 रुपये था टिकट बेंगलोर से कलकत्ता का। तो जब वहाँ पहुँचे तो कोई भी नहीं हमें रिसीव करने आया। तो हमने कहा ये क्या हो रहा है, इतनी चिट्ठियाँ पत्रियाँ लिखी, कोई भी नहीं। तो कहने लगे कि राइस रॉयट्स हो रहे हैं कलकत्ता में, इसके लिए उन्होंने तारे वारे सब काट दिए, ना टेलीफोन कर सकते हो, ना पोस्ट जा रही है, कुछ भी नहीं है। तो और डमडम एयरपोर्ट से शहर कैसे जाएंगे, एयरपोर्ट से तेरे डैडी के घर कैसे जाएंगे। तो एक सरदार जी थे, उनके पास कर्फ्यू का पास लगा हुआ था। एक टैक्सी में, ओल्ड शेवरलेट टैक्सी में, पता नहीं हम 10 या 12 जने कैसे घुसड़ के बैठे, मगर बैठ गए कि एक ही टैक्सी थी शहर जाने की, कलकत्ते जाने। और जब कोई उतरता था तो हमें बहुत खुशी होती थी, भाई ज़्यादा जगह होगी, ज़रा पसर के बैठ जाओ। तो फिर मेरा हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी प्रीति were the last passengers to be in the taxi. तो मेरे हस्बैंड 3 बजे सुबह तड़के तो कहने लगे मगर तुमने डैडी का नया घर तो देखा ही नहीं, कैसे पता लगेगा। और कोई सड़क भी नहीं थी, रॉयट से तो कलकत्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मैं बताती हूँ शायद। तो मैं टैक्सी वाले सरदार जी को कहने लगी देखो ऐसे चलिए, अब ऐसे चलिए, अब ऐसे मुड़िए, हाँ अब ये सीधी सड़क है। और इट्स स्टिल अ मिस्ट्री हाउ आई लैंडेड एट द गेट ऑफ मिस्टर B.N. अतरीशी। उस पर नाम, वो साइन बोर्ड लिखा हुआ था, चीफ कंट्रोल पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस इंडिया, और 7/14 मर्लिन पार्क। कहने लगे हाउ डिड यू हैव नेवर बीन टू दिस प्लेस बिफोर। शादी से पहले मनोहरपुर में रहते थे, दूसरी साइड में। अब शादी के बाद आप 1957 से 61 में आ रहे, तो यानी घर कैसे पसंद, मतलब पहचान लिया। मैंने कहा ये जगह बड़ी जानी पहचानी लगती है, बहुत अच्छा लगता है इस घर में। खैर हम उतरे, उन्होंने टैक्सी के पैसे वैसे चुकाए, सामान लिया, मैं अंदर भागी मम्मी डैडी से मिलने, और दरवाज़ा पीटने लगी। तो वो लोग ने दरवाज़ा ही नहीं खोला, कहने लगे शायद कोई राइटर्स आ गए, गुंडे आ गए, 3-3:30 बजे सुबह। तो मैंने कहा मैं सविता हूँ, दरवाज़ा खोलो। कहने लगे अरे तू कैसे आई, तूने घर तो पहले देखा ही नहीं था, चलो अंदर आओ जल्दी। नौकर से कहा कि जल्दी छोटे चाय बना, ये कर वो कर। अंदर बुलाया, सामान रखा, मम्मी ने जल्दी से हमारा कमरा वगैरह ठीक करा, और फिर बातें करते रहे। कहने लगे तुम थक गए हो गए, सो जाओ, सवेरे बातें होंगी। फिर सवेरे 7 बजे तो मेरे हस्बैंड जग गए और कहने लगे मुझे तो 9 बजे ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है कलकत्ता हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स में। तो कर्फ्यू ऑर्डर लगा हुआ था, टैक्सी नहीं मिलेगी। तो मेरे डैडी की जो स्टाफ कार थी ना, उसी में बिठा के मेरे हस्बैंड को वहाँ छोड़ा। योर डैडी कौन, पिछले जन्म के पिता या ये जन्म के? इस जन्म के पिता भी वहाँ थे? हाँ, यही तो ताज्जुब की बात है बेटे।
पहले वाला बाप भी था, दूसरे बाप को नौकरी मिली वहाँ। अच्छा अच्छा, पहला तो उसी घर बंगाली में? था, ये तो पंजाबी हैं। तो उसी घर में वो ऑफिस? हाँ, तो जगह मैंने पहचान ली थी, मगर घर कोई बहुत मॉडर्न कंस्ट्रक्शन था। अच्छा, डबल स्टोरी, आई हैव गॉट फोटोग्राफ्स आल्सो। ओके। तो क्या 7/14 मर्लिन पार्क। मर्लिन पार्क। और सड़क का रोड क्या था? सड़क कौन सी थी? बालीगंज खाड़ी। नहीं, उस सड़क का नाम क्या था? बालीगंज खाड़ी। बालीगंज। नहीं, आपने पिछली बार कुछ और नाम मुझे बताया था। डबल ट्राम वे, क्वालिटी होटल के सामने, मर्लिन पार्क। अच्छा, मर्लिन पार्क बोला था। हाँ, अच्छा, उसकी जगह का नाम है मर्लिन पार्क। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर मम्मी कहने लगी चल। तो मैंने कहा मम्मी घर तो बहुत बहुत बड़ा है, बंगलो टाइप का। तो कहने लगी अभी मैंने कहा कि मम्मी यहाँ पे एक तालाब होना चाहिए था, छोटा सा। कहने लगी तुझे कैसे मालूम? मैंने कहा ये वही पेड़ है, ये वही तालाब होना चाहिए यहाँ। यहीं तो बैठ के मैं मछलियाँ काटती थी, बर्तन साफ करती। कहने लगी तुझे कैसे मालूम हुआ? तू तो पहली दफ़ा आई है 7/14 मर्लिन पार्क में। तो मैंने कहा कि नहीं। कहने लगी मच्छर बहुत हो गए थे, हमने 3-4 ट्रक मिट्टी के ला के भरवा दिया, क्योंकि हमने भैंसें रखी हुई हैं गैराज में। कार तो थी नहीं अपनी, तो स्टाफ कार से काम चल जाता था। तो ये तुझे कैसे? मैंने कहा कि मुझे ये जानी पहचानी लगती है जगह। बहुत अच्छा लगा था बेटा। कैलकाटा इज स्टिल माय फेवरेट सिटी इन इंडिया। आई नो इट्स डिकेइंग, बहुत कार्बन हो गया है वहाँ पे। जब दिल्ली जैसी जगह में कार्बन भर गया है तो कैलकाटा का तो कुछ ही नहीं। मगर बहुत सुकून मिलता है कैलकाटा में। एंड आई even when I was killed by a Bengali, I still love Bengalis. I don't know why. इस जन्म में डैडी पंजाबी, मम्मी हिमाचलन, but still I've got a great attachment to Bengalis. In one of our conversations, Savita told me that in the year 2004, she was visiting her son in Houston. One day, his son decided to take everybody to the Houston Museum of Natural Science. Savita wanted to go to the movies instead. She asked her son to drop her to a cinema hall where Titanic was playing. She says the hall was nearly empty. After a while, 2 white women came and sat just next to her, although the entire row was empty. They had a shopping bag, and there was also a little girl of 10 or 12 with her. Savita kept seeing the movie, but after a while she felt that she was being watched. She realized that the little girl was watching her, rather staring at her. Savita started concentrating on the movie, but still she had that uncomfortable feeling of being watched. Yes, she was being watched by the little girl throughout. At the end of the movie, as the women started to leave, the little girl took out a teddy bear from the shopping bag and gave it to her, saying, "Patho, you can take it." Savita was totally shocked because Pathu was her nickname in childhood. Nobody had called her by that name in the past 70 years.
How did this little girl know that she was Patho, and why did she give the teddy bear to her? I asked Savita, who could that little girl be? Savita said she was probably a dead cousin of hers whom she loved very much. Today is the 3rd of November 2021. About 2 weeks ago, I got a message from Shyamla Vatsa, a friend of mine from Bangalore, who had introduced me to Savita Sharma a few years ago. The message said, Savita Sharma suddenly died on 6th May 2021. A month later, Dr. Preeti, her daughter, who was very close to her, also died.